السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ شہزادہ اللہ دیا۔ بہت زمانہ گزرا، کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ اولاد کی آرزو میں ہر دم اداس رہتا اور راتوں کو تنہائی میں رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی، کیونکہ جو بھی اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے۔ خیر تو بادشاہ کے گھر ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے اس خوشی میں جشن منانے کا حکم دیا اور پورے 7 روز تک بادشاہ کے در سے خیرات بٹتی رہی اور پورے 7 روز تک خوشی کے شادیانے بجتے رہے۔ اس شہزادے کا نام اللہ دیا رکھا گیا، کیونکہ بادشاہ کی دعائیں سن کر اس شہزادے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ لیکن بادشاہ اور اس کی رعایا کی یہ خوشیاں عارضی ثابت ہوئی۔ اللہ دیا کی پیدائش کے 15ویں دن شہزادے کی ماں اچانک چل بسی۔ بادشاہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن کوئی غم ایسا نہیں جسے تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ بھلا نہ دے۔ وقت گزرتا رہا، شہزادہ اللہ دیا گھٹنوں چلنے لگا۔ پھر اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور اب وہ چلنے لگا تھا۔ بادشاہ کا دل اپنے بیٹے کو دیکھ کر باغ باغ ہوا جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، شہزادہ اللہ دیا اب 5 سال کا تھا۔ چنانچہ اس کی تعلیم کے لیے اور اسے شاہی آداب سکھانے کے لیے دور دور سے عالموں اور فاضلوں کو بلایا گیا۔ شہزادے کی تعلیم شروع ہوئی۔ شہزادہ خود بھی فطرتاً ہوشیار اور عقل مند تھا، چنانچہ جو بات بھی اسے بتائی جاتی وہ فوراً اس کے ذہن نشین ہو جاتی۔ بادشاہ کا ایک بھائی تھا جو بڑا عیار اور ظالم تھا اور اپنے بڑے بھائی یعنی اللہ دیا کے باپ کے تخت پر بیٹھنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے یہ خواب بہت جلد پورے ہوں گے، کیونکہ بادشاہ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ لیکن جب اللہ نے بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت اور ہونہار فرزند دے دیا تو بادشاہ کے بھائی کی ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی، کیونکہ اب تاج و تخت کا صحیح وارث پیدا ہو گیا تھا۔ اور اب وہ یعنی بادشاہ کا بھائی، جس کا نام سامری تھا، بادشاہ نہ بن سکتا تھا۔ چنانچہ سامری کو اللہ دیا سے نفرت ہو گئی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ شہزادے کو اٹھا کر سمندر میں ڈبو دیتا۔ وقت گزرتا گیا، شہزادہ اللہ دیا بڑا ہوتا گیا، لیکن ابھی وہ پوری طرح جوان بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایک دن بادشاہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ سامری کو موقع مل گیا، اس نے جھٹ سے اپنے بھائی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ لوگ اپنے رحم دل بادشاہ کی موت سے پریشان تھے اور اس کا غم منا رہے تھے، چنانچہ انہیں یہ بھی پتہ نہ چلا کہ ظالم سامری نے تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ سامری نے تخت پر قبضہ کرنے کے فوراً بعد شہزادے اللہ دیا کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ اسی رات سامری نے اپنے ایک ملازم کو طلب کیا۔ شہزادہ اللہ دیا اپنے باپ کی یاد میں بیٹھا رو رہا تھا۔ سامری اس کے کمرے میں پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے بولا، میرے ساتھ آؤ۔ شہزادہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ سامری دوسرے کمرے میں پہنچا جہاں ملازم اس کا منتظر تھا۔ دیکھو، اسے لے جاؤ اور اسے اس کے باپ کے پاس پہنچا دو، خیال رہے اس واقعے کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، سامری نے ملازم سے کہا۔ شہزادہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے چچا کے یہ کہنے سے کیا مطلب ہے کہ اسے اس کے باپ کے پاس پہنچا دیا جائے، لیکن چونکہ شہزادہ خوددار تھا اور اپنے ظالم چچا کے مزاج سے واقف تھا، اس لیے اس نے سامری سے رحم کی درخواست نہ کی اور خاموشی سے ملازم کے ساتھ ہو لیا۔ ملازم شہزادے کو شہر سے دور لے گیا۔ شہزادہ خاموش تھا اور سر جھکائے چل رہا تھا۔ ملازم اسے لے کر ایک جنگل میں پہنچا اور بولا، شہزادے، جانتے ہو میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ جانتا ہوں، افسوس ہے کہ تو نے میرے باپ کا نمک کھایا ہے اور آج تو انہی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ شہزادے، تم نے غلط سمجھا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ تمہارے والد نے مجھے خاک سے پاک کیا اور آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے کیونکہ تم میرے آقا کی آخری نشانی ہو۔ تو پھر تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ شہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ سنو شہزادے، میں جانتا تھا کہ سامری تمہیں اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ کام میرے سپرد کیا جائے گا۔ چنانچہ میں نے پہلے ہی سے سارے انتظامات کر لیے ہیں۔ قریب کی بندرگاہ میں ایک جہاز تیار کھڑا ہے جو تمہیں یہاں سے دور کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا۔ میں تمہیں اسی جہاز میں سوار کرائے دیتا ہوں۔ آگے سوائے اس کے اور کیا کہوں کہ خدا تمہاری مدد کرے۔ شہزادے کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو چھلک آئے۔
وہ آگے بڑھ کر اپنے وفادار ملازم کے سینے سے چمٹ گیا۔ ملازم بھی رو رہا تھا۔ اس نے شہزادے کو ساتھ لیا اور بندرگاہ پر پہنچ گیا، جو زیادہ دور نہ تھا۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا، ایک جہاز واقعی تیار کھڑا تھا۔ شہزادہ اپنے ملازم سے رخصت ہو کر جہاز پر سوار ہو گیا اور فوراً ہی جہاز نے لنگر اٹھا دیا۔ شہزادے کے بحری سفر کا تیسرا دن تھا کہ اچانک زبردست طوفان پھٹ پڑا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، ہوا کے تیز جھکڑ چلنے لگے، بارش ہونے لگی اور سمندر میں کوہ پہ کر موجیں اٹھنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاز اپنے راستے سے بھٹک کر کہیں کا کہیں جا نکلا۔ خود جہاز کا کپتان بھی پریشان تھا اور نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس طرف جا رہے ہیں۔ ملح پریشان تھے کہ کیا کریں۔ طوفان بدستور جاری تھا۔ ایک موج آتی اور جہاز کو تھپیڑا دے کر اس طرف سے اس طرف گھما دیتی۔ جہاز ابھی سنبھلنے بھی نہ پاتا کہ دوسری موج نہایت زور سے جہاز سے ٹکراتی اور جہاز کانپنے لگتا۔ اس کے مستول چرچرا اٹھتے۔ ملح جہاز کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ابھی ان کی کوشش جاری ہی تھی کہ تیز ہوا اور زبردست موجیں جہاز کو بہت آگے گھسیٹ لے گئیں۔ اس طرف سطح آب پر چٹانیں ابھری ہوئی تھیں۔ جہاز نہایت زور سے ایک چٹان سے ٹکرایا اور پاش پاش ہو گیا۔ تمام مسافر اور ملح غرق ہو گئے، لیکن شہزادہ اللہ دیا بچ گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں جہاز کا ایک تختہ آ گیا تھا۔ 3 دن اور 3 راتوں تک وہ تختے کا سہارا لیے تیرتا رہا۔ چوتھے دن موجوں نے اسے ایک جزیرے پر ڈال دیا۔ اس وقت شہزادہ بھوک پیاس اور تھکن سے نیم جان ہو رہا تھا۔ دوسرے دن صبح تک وہ ریت پر مردے کی طرح پڑا رہا۔ دوسرے دن کا سورج جب کافی بلند ہو گیا تو اس کی کرنیں سوئیوں کی طرح شہزادے کے جسم میں چبھنے لگیں تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ پھر بڑی کوششوں کے بعد اٹھا تو اس کے پاؤں کمزوری سے کانپنے اور سر چکرانے لگا۔ جب اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تو اس نے چاروں طرف دیکھا اور اب اسے معلوم ہوا کہ موجوں نے اسے کسی دور افتادہ اور گمنام جزیرے پر لا پھینکا تھا۔ شہزادہ ڈگمگاتے قدموں سے چل پڑا اور پورے جزیرے کا چکر لگا کر بہت جلد اسی جگہ واپس آ گیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ اس طرح اسے معلوم ہو گیا کہ وہ جزیرہ بہت چھوٹا تھا اور حد نظر تک کوئی دوسرا جزیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جزیرہ سرسبز و شاداب تھا۔ اس پر مختلف قسم کے پھلوں کے درخت تھے اور بہت سے چشمے بھی تھے جو میٹھے پانی کے تھے، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ کسی درخت پر کوئی پرندہ نظر نہیں آتا تھا اور نہ ہی زمین پر کہیں کوئی جانور دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ ظاہر ہوا کہ جزیرہ ویران تھا۔ شہزادے نے درختوں سے پھل توڑ کر کھائے، چشموں کا پانی پیا اور سمندر کے کنارے ریت پر پڑ کر سو گیا۔ چنانچہ اب وہ روزانہ پھلوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھاتا، چشمے سے پانی پیتا اور کسی بھولے بھٹکے جہاز کے انتظار میں کنارے پر آ کر بیٹھ جاتا، لیکن کوئی جہاز نہ آیا جو اسے اس ویران جزیرے سے نکال لے جاتا۔ ایک دن وہ کنارے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے سمندر کی طرف سے ایک بہت بڑی کالی کالی چیز جزیرے کی طرف آتی ہوئی نظر آئی، لیکن وہ چیز تیر نہ رہی تھی بلکہ ہوا میں پرواز کر رہی تھی۔ شہزادہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، شاید کوئی بڑا پرندہ ہوگا، لیکن نہیں، وہ پرندہ بھی نہیں تھا کیونکہ اس کے بازو نہ تھے۔ وہ چیز بغیر بازوؤں کے پرواز کر رہی تھی اور لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ شہزادہ حیرت سے بت بنا اسے قریب آتے دیکھ رہا تھا اور اب اس نے دیکھا کہ وہ کیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا کالے رنگ کا جنگلی سور تھا جو تعجب ہے کہ پرندے کی طرح ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ شہزادے کو یقین نہ آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے آنکھیں مل کر دیکھا، بے شک وہ سور ہی تھا اور بے شک وہ اڑ رہا تھا۔ جب وہ بہت قریب آ گیا تو شہزادہ ڈر کے مارے کانپنے لگا، لیکن پھر فوراً ہی اٹھا اور دوڑ کر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ سور جزیرے پر اترا اور ایک درخت کی چھاؤں میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ گہری نیند سو گیا اور اس کے خراٹوں کی آواز جزیرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ شہزادہ جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر سور کے قریب پہنچا اور اس نے دیکھا کہ سور کے منہ سے 2 بڑے بڑے سفید دانت باہر رکھے ہوئے تھے جو بھالو کی طرح تھے۔ دوسری بات شہزادے نے یہ دیکھی کہ اس کے قریب ایک بہت بڑا ہیرا پڑا ہوا تھا۔ شہزادے کے باپ کے خزانے میں، جس پر اب سامری نے قبضہ کر لیا تھا، بڑے بڑے ہیرے تھے، لیکن اتنا بڑا اور ایسا عمدہ ہیرا شہزادے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہیرا سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا۔
शहजादा पंजों के बल चलता हुआ हीरे के करीब पहुंचा। सूअर बेखबर सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। शहजादे ने झुककर हीरा उठा लिया तो शहजादा उछल पड़ा। हीरा देखने में वो इतना महू हुआ कि खौफनाक काले सूअर की मौजूदगी को भूल गया था। या मेरे खुदा, अगर ये जाग पड़ा तो क्या होगा, उसने सोचा। बहुत खतरनाक बल्कि खूंखार मालूम होता है ये, और फिर इसके बड़े बड़े दांत भी हैं जो भालू की तरह हैं, और मेरे पास कोई हथियार नहीं जिससे मैं अपनी हिफाजत कर सकूं। काश कि मैं किसी तरह नारियल के उस दरख्त पर पहुंच जाऊं। लेकिन उसने इतना सोचा और एकदम से कुछ हुआ। खुदा जाने क्या हुआ। शहजादे ने हैरत से देखा कि वो नारियल के दरख्त पर बैठा हुआ था। वो हैरान था कि ये कैसे हुआ। उसने दरख्त पर पहुंचने के मुताल्लिक अभी सोचा ही था। वो दरख्त पर चढ़ा ना था। चढ़ना तो एक तरफ रहा, वो अपनी जगह से हिला तक ना था और दरख्त की चोटी पर बैठा हुआ था। इसलिए पहले तो उसे चक्कर आ गए। फिर वो इस बात पर गौर करने लगा कि ये क्या बात हुई कि वो सोचते ही दरख्त पर पहुंच गया। बिजली की सी तेजी से एक ख्याल उसके दिमाग में कूद गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हीरा जादू का हो और इसने मुझे दरख्त पर पहुंचा दिया हो। चुनांचे उसने महज आजमाने के लिए कहा, मुझे जमीन पर पहुंचा दो, और पलक झपकने में वो एक बार फिर जमीन पर खड़ा था। वो ये ना जान सका कि ऐसा किस तरह हुआ। बस वो एक बार फिर दरख्त के नीचे जमीन पर खड़ा था। चुनांचे जाहिर हुआ कि वो हीरा वाकई जादू का था और बड़ा कीमती, जो इत्तेफाक से शहजादे के हाथ लग गया था, और अब वो उसे किसी तरह खोना नहीं चाहता था। चुनांचे उसने फिर दरख्त पर बैठने की ख्वाहिश जाहिर की और वो नारियल के दरख्त की चोटी पर पहुंच गया। उस दरख्त पर बहुत से नारियल लगे हुए थे। शहजादे ने एक नारियल तोड़कर नीचे सोए हुए सूअर की तरफ फेंका। नारियल सूं से चला और खटाक से सूअर की थूथनी पर लगा। सूअर की आंख खुल गई। वो उठा और अपना हीरा तलाश करने लगा, लेकिन हीरा वहां होता तो उसे मिलता। हीरा तो शहजादे के पास था और शहजादा दरख्त पर बैठा हुआ था। यहाँ हम ये बता दें कि वो सूअर दरअसल एक बहुत बड़ा जादूगर था और बहुत ही जालिम भी था। चुनांचे वो सूअर के रूप में घूमा करता था और उस दिन जरा देर सुस्ताने के लिए उस जजीरे पर ठहर गया था। जब उसे अपना हीरा ना मिला तो वो मारे गुस्से के पागल हो गया और निहायत खौफनाक आवाज में गुर्राने लगा, क्योंकि उसकी सारी जादुई कुव्वतें उसी हीरे में छुपी हुई थी। उसके बगैर ना तो वो उड़ सकता था और ना ही दोबारा अपने असली रूप में आ सकता था। वो गुर्राने, चीखने और इधर उधर दौड़ने लगा। अचानक उसकी नजर ऊपर उठी और उसने शहजादे को दरख्त पर बैठे देखा। वो समझ गया कि हो ना हो मेरा हीरा इसी लड़के ने चुराया है। अब तो मारे गुस्से के उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके मुंह से कफ जारी हो गया और वो दरख्त के गिर्द नाचने और निहायत ही भयानक आवाज में चिल्लाने लगा। शहजादा जानता था कि हीरे के बगैर सूअर उड़ नहीं सकता, इसलिए वो उस तक नहीं पहुंच सकता और वो महफूज है। शहजादा सूअर का गुस्सा देखकर हंसा और ऊपर से नारियल तोड़ तोड़ के फेंकने लगा, जो उसके सर और पीठ पर लगे। अब तो सूअर बिल्कुल ही दीवाना हो गया। वो शहजादे तक पहुंच नहीं सकता था क्योंकि जादुई हीरा उसके पास नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना वो उस दरख्त को ही गिरा दे ताकि उसके साथ शहजादा भी नीचे आ रहे और फिर वो उससे निपट लेगा। अब कहाँ एक सूअर और कहाँ नारियल का दरख्त। कभी कोई सूअर नारियल के दरख्त को गिरा सका है कहीं? लेकिन गुस्से में सूअर की अक्ल जाती रही थी। वो कई कदम पीछे हटा, वो गुर्राया, वो फुनकारा और सर झुकाकर निहायत तेजी से दरख्त की तरफ लपका। उसने दरख्त को एक जबरदस्त टक्कर मारी। दरख्त तो क्या गिरता, खुद उसी के सर में चोट आ गई। उसे और भी गुस्सा आया। उसने दरख्त पर दूसरा हमला किया। इस दफा उसके बाहर को निकले हुए बड़े बड़े दांत दरख्त के तने में घुस गए। सूअर ने लाख कोशिश की लेकिन वो नहीं निकले। वो इतने जोर से चीखा कि जजीरा गूंज उठा। उसने अपने दांत निकालने की दीवानावार कोशिश की, लेकिन वो कुछ ऐसे फंसे थे कि नहीं निकले। शहजादा दरख्त पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि सूअर के दांत बुरी तरह फंस गए हैं और वो बेबस है, तो शहजादे ने जमीन पर पहुंचने की ख्वाहिश जाहिर की और पलक झपकते में ही वो जमीन पर था। सूअर बदस्तूर चीख रहा था और अपने दांत छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। शहजादे ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। करीब ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था।
वो दौड़कर उसे उठा लाया और उससे वो सूअर की खोपड़ी तोड़ने लगा। थोड़ी देर बाद ही सूअर की खोपड़ी फट गई और वो मर गया। शहजादे ने इत्मीनान का सांस लिया। अब उस जजीरे में रहने की कोई जरूरत ना थी। कोई जहाज आए या ना आए, वो उस जजीरे से निकल सकता था, क्योंकि अब उसके पास जादुई हीरा था। चुनांचे उसने वो हीरा हाथ में लिया और कहा, मुझे यहाँ से निकाल के किसी करीबी जजीरे या शहर में पहुँचा दो। अभी ये अल्फाज उसके मुंह से निकले ही थे कि उसे ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल गई हो। वो ऊपर उठ गया था, ऊपर, और अब वो किसी परिंदे की तरह फिजा में उड़ रहा था। नीचे समंदर था और ऊपर आसमान। वो समंदर पर से गुजर रहा था। ऊपर सूरज चमक रहा था और नीचे समंदर में मौजें उठ रही थीं, जो ऊपर से शहजादे को यूं मालूम होती थीं जैसे तालाब की छोटी छोटी लहरें हों। वो समंदर पर उड़ता रहा यहाँ तक कि सूरज मगरिब की जानिब झुक गया। दिन खत्म हो रहा था, सूरज गुरूब हो रहा था कि शहजादा नीचे उतरने लगा और थोड़ी देर बाद ही वो एक रेतीले साहिल पर खड़ा था। खुदा जाने ये मैं कहाँ आ गया हूँ, उसने सोचा। ये कोई शहर तो मालूम नहीं होता, शायद कोई जजीरा है ये भी। बहरहाल दिन खत्म हो रहा है, रात गुजारने के लिए कोई मुनासिब और महफूज जगह तलाश करनी चाहिए। शहजादे ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। करीब ही झाड़ियों का झुंड था और उस झुंड के पीछे से धुआं उठ उठकर फिजा में फैल रहा था। शहजादे ने हीरा अपनी जेब में रखा और उन झाड़ियों की तरफ चल पड़ा। वो झाड़ियों के करीब पहुंचा। दोनों हाथों से उसने झाड़ियां हटाई और झांक कर देखा। सामने एक अजीब तरह की झोपड़ी थी, जैसे औंधा कटोरा। झोपड़ी के दरवाजे पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। बूढ़े के सामने आग जल रही थी और बूढ़ा आग पर भेड़ के बच्चे की रान भून रहा था। शहजादे ने देखा कि उस बूढ़े की टांगे ना थी। वो किसी जानवर की खाल की टोपी अपने सर पर रखे हुए था और उसी खाल का कोट भी पहने हुए था। चूंकि उसकी टांगे ना थी, इसलिए उसे शलवार या पतलून पहनने की जरूरत ही ना थी। चुनांचे जाहिर है कि वो पतलून पहने हुए ना था। शहजादा उस बूढ़े के पास पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम जनाब, शहजादे ने कहा। सलाम, बूढ़े ने जवाब दिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं आज की रात आपके यहाँ ठहर जाऊं? शहजादे ने पूछा। बड़े शौक से ठहरिए, मेरा झोंपड़ा आपका झोंपड़ा है और आप शायद भूखे भी होंगे। बूढ़े ने पूछा। जी हाँ, भूख तो बहुत लगी है। शहजादे ने अपने पेट पर हाथ फेर कर कहा। तो आओ फिर खाना खा लें, बगैर टांगों के बूढ़े ने कहा। चुनांचे दोनों खाने बैठ गए। शहजादा ये देखकर हैरान हो गया कि बूढ़ा गोश्त तो खा ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो हड्डियां और खाल भी चबा जाता था और उसके खाने का अंदाजा भी वहशियों जैसा था। आहिस्ता आहिस्ता शहजादे के दिल में खौफ पैदा होने लगा। वो उस बूढ़े की तरफ से मुतमईन न था। ये बूढ़ा या तो कोई देव है या फिर जादूगर, शहजादे ने सोचा। और शहजादे का अंदाजा गलत न था। वो बूढ़ा हकीकत में एक जादूगर ही था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो इंसानों को खा जाता था। अगर कोई भूला भटका मुसाफिर उस तरफ आ निकलता तो बूढ़ा पहले तो मीठी मीठी बातें करके उसे लुभाता और फिर मौका मिलते ही उसे मारकर खा जाता था। उसने शहजादे को फौरन ही मारकर ना खा लिया, क्योंकि भेड़ के बच्चे का गोश्त भूना जा चुका था। लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि दूसरे दिन वो शहजादे को खा लेगा। तुम यहाँ कैसे आ गए साहबजादे? बूढ़े जादूगर ने, जिसकी टांगे ना थी, पूछा। मैं उड़कर आया हूँ, शहजादे ने जवाब दिया। अच्छा, बूढ़े ने हैरत से कहा, लेकिन तुम्हारे पर तो है नहीं, फिर उड़े क्यों कर? चुनांचे शहजादे ने जादूगर को वो हीरा दिखाया और कहा कि ये हीरा जादुई है और इसके जरिए आदमी जहाँ चाहे पहुँच सकता है। ये तो भाई बहुत उम्दा चीज है। बूढ़े ने कहा, ऐसा करो कि ये हीरा तुम मुझे दे दो। वाह, ये मैं तुम्हें क्यों दे दूं? शहजादे ने कहा, मैं इस हीरे के बदले में तुम्हें एक दूसरी चीज दूंगा। बूढ़ा बोला, क्या दोगे? शहजादे ने पूछा। कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी लेकर मैं क्या करूंगा? जंगल में जाकर लकड़ियां काटने से तो रहा। शहजादे ने कहा, तुम देख रहे हो कि मेरी टांगे नहीं है, मैं चल फिर नहीं सकता। चुनांचे तुम सोचोगे कि फिर मैं अपनी ग़िज़ा वगैरह किस तरह हासिल करता हूँ। सुनो, ये कुल्हाड़ी जादू की है। अब अगर मैं इसके दस्ते पर हाथ रखकर कहूँ कि ईंधन और आग, तो ये कुल्हाड़ी उड़कर जाती है, लकड़ियां काट कर लाती है और आग भी जला देती है। फिर अगर मैं इसके फल पर हाथ रखकर कहूँ सर,
तो ये फिर उड़कर जाती है और किसी भेड़, हिरन या उसके जानवर को जिसका गोश्त मैं खाना चाहता हूँ ज़िबह करके मेरे पास ले आती है। चुनांचे मैं कोई 1000 साल से यहाँ रह रहा हूँ। कुल्हाड़ी मेरे लिए ईंधन भी लाती है और गोश्त भी, लेकिन इस एक जगह रहते रहते मैं थक गया हूँ। अब अगर तुम मुझसे ये कुल्हाड़ी लेकर अपना हीरा मुझे दे दो तो मरने से पहले मैं भी जरा दुनिया देख लूं। बहुत अच्छा, शहजादे ने कहा, अपनी कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए। ये वाकई एक उम्दा चीज है। इसके अलावा मुझे आपकी हालत पर रहम भी आता है। तुम वाकई बहुत अच्छे लड़के हो। बूढ़े ने खुश होकर कहा। शहजादे ने हीरा बूढ़े जादूगर को दे दिया। बूढ़े ने अपनी कुल्हाड़ी शहजादे को दे दी। बूढ़ा उलट पुलट कर हीरे को देखने लगा और सोचने लगा कि वो आज ही रात को शहजादे को मारकर खा लेगा और फिर कुल्हाड़ी और हीरा दोनों उसी के होंगे। और शहजादा भी उस बूढ़े की तरफ से मुतमईन ना था। पहले तो वो कुल्हाड़ी को देखता रहा, फिर उसने कुल्हाड़ी के फल पर हाथ रखा और कहा, सर। और कुल्हाड़ी जों से उड़ी और बूढ़े जादूगर का सर उड़ा गई। जादूगर की टांगें तो पहले से ही ना थीं, अब उसका सर भी ना रहा। टांगों बगैर तो आदमी जी सकता है, लेकिन कोई बगैर सर के नहीं जी सकता। चुनांचे वो जादूगर मर गया, और वो बहुत बड़ा जादूगर था क्योंकि आदमियों को खा जाता था। शहजादे ने हीरा उठाकर अपनी जेब में रख लिया। अब उसके पास जादू की 2 चीजें थी, एक हीरा और दूसरी कुल्हाड़ी। शहजादे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जादूगर की झोंपड़ी में जाकर सो गया। दूसरे दिन शहजादा आगे रवाना हुआ। हीरा उसकी जेब में था और जादू की कुल्हाड़ी वो अपने कंधे पर रखे हुए था। वो दिन भर जंगल में चलता रहा। दोपहर को उसे भूख मालूम हुई। उसने कुल्हाड़ी को हुक्म दिया। वो ईंधन और गोश्त ले आई। शाम हो रही थी कि शहजादे को एक और झोंपड़ी नजर आई। ये झोंपड़ी भी बेटांगों वाले जादूगर की झोंपड़ी जैसी ही थी। उस झोंपड़ी के सामने भी आग जल रही थी। उस आग के करीब एक बूढ़ा बैठा हुआ था। उस बूढ़े के हाथ ना थे। ये बूढ़ा लकड़ी के एक मोटे और ऊंचे कुंदे पर बैठा हुआ था। ये गोया उसकी कुर्सी थी। उसके सामने लकड़ी का वैसा ही और उतना ही ऊंचा दूसरा कुंदा रखा हुआ था। ये गोया उसकी मेज थी। इस अजीबोगरीब मेज पर एक प्याला रखा हुआ था। प्याले में दूध था। बूढ़े के चौके हाथ ना थे, इसलिए वो प्याले पर झुका, सुड़प सुड़प दूध पी रहा था। शहजादा आगे बढ़ा। बूढ़े ने प्याले पर से सर उठाया और शहजादे को आते देखा। फौरन ही उसने अपनी थोड़ी से ठौका देकर प्याले को औंधा कर दिया। खुदा जाने क्या हुआ कि एक गहरा और तूफानी दरिया प्याले में से निकला और बूढ़े और उसकी झोंपड़ी के चारों तरफ घूम गया। दरिया बहुत गहरा था और ऐसा मालूम होता था जैसे उसमें तगयानी आई हुई है। बूढ़े और उसकी झोंपड़ी के चारों तरफ दरिया था। यूं समझो कि वो हिस्सा जहां बूढ़ा बैठा हुआ था एक जजीरा बन गया था। शहजादा हैरान रह गया। बूढ़े ने शहजादे की हैरत देखी तो हंसने लगा। शहजादे ने फौरन अपनी जेब से हीरा निकाला, उसे हाथ में पकड़ा और कहा, मुझे बूढ़े के पास ले चलो। अभी ये अल्फाज शहजादे के मुंह से निकले ही थे कि बूढ़े के सामने खड़ा था। अब शहजादे के हंसने की बारी थी। तुम यहाँ कैसे आ गए? कैसे अबूर किया तुमने इस दरिया को? बूढ़े ने, जिसके हाथ ना थे, हैरत से आंखें फाड़कर पूछा। ये दरिया तो कोई चीज नहीं, मैं बड़े बड़े समंदर भी अबूर कर सकता हूँ। शहजादे ने जवाब दिया। कैसे? बूढ़े ने पूछा। जवाब में शहजादे ने बूढ़े को अपना हीरा दिखाया और उसकी खुसूसियात बताई। ये हीरा अगर मुझे मिल जाए तो बस मजा ही आ जाए। बूढ़े ने सोचा और बोला, लड़के, ये हीरा तुम मुझे दे दो। दे तो दूं, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? शहजादे ने पूछा। मैं अपना ये प्याला तुम्हें दे दूंगा। बूढ़े ने कहा, ये जादू का प्याला है। जब भी तुम्हें भूख मालूम हो तो प्याला अपने सामने रख लेना, फिर तुम खाने और पीने के लिए जो भी मांगोगे वो इस प्याले में आ जाएगी। ये तो एक बात हुई। दूसरी करामत ये है कि इस प्याले में कि जब तुम इसे उलट दोगे जैसा कि मैंने इसे उलट दिया था, तो इसमें से एक गहरा दरिया निकलकर तुम्हारे चारों तरफ घूम जाएगा, और अगर तुम चाहोगे तो यही दरिया पूरे शहर और आबादी को भी डुबो देगा। वाह भाई वाह, ये तो वाकई बड़े काम की चीज है। शहजादे ने सर हिलाकर कहा, बड़े मियाँ, मुझे ये तबादला मंजूर है। चुनांचे शहजादे ने बूढ़े से प्याला ले लिया और हीरा उसे दे दिया। बूढ़े की आंखें चमकने लगी। वो खुश था कि उसे एक नादिर चीज मिल गई है, लेकिन उसे ज्यादा देर तक खुश होने का मौका नहीं मिला।
शहजादे ने अपनी कुल्हाड़ी के फल पर हाथ रखकर कहा, सर। कुल्हाड़ी उड़कर बूढ़े के सर पर पहुंची, झुकी और बूढ़े का सर धड़ से जुदा हो गया था। शहजादे ने हीरा उठाकर जेब में रख लिया। अब उसके पास 3 चीजें थीं, हीरा, कुल्हाड़ी और प्याला। शहजादा बहुत खुश था। उसने प्याला अपने सामने रखकर कहा, चूजे की यखनी यानी चूजे का शोरबा। और यखनी तैयार थी। उसने यखनी पी और बूढ़े की झोपड़ी में सो गया। दूसरे दिन सुबह शहजादे ने जादुई प्याले के जरिए नाश्ता हासिल किया और तीनों चीजें लेकर चल पड़ा। वो जंगल में से गुजर रहा था। जंगल घना था और उसमें ऊंचे ऊंचे दरख्त उग रहे थे। वो कई घंटों तक चलता रहा। यकायक उसने एक आवाज सुनी। ये आवाज बहुत दूर से आ रही थी और ढोल की आवाज थी। कहीं कोई ढोल बजा रहा था। उस आवाज को सुनते ही शहजादे को ऐसा मालूम हुआ जैसे उसकी टांगों ने उसका साथ छोड़ दिया है। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी टांगें उसे वहां से भगा ले जाना चाहती थी। शहजादा हैरान था कि ये एकदम से उसे क्या हो गया, क्योंकि उसका जी चाहता है कि वो वहां से भाग जाए। उसने बड़ी कोशिशों से अपने आप को रोका और उस तरफ चला जिस तरफ से ढोल की आवाज आ रही थी। अभी वो ज्यादा दूर ना गया था कि एकदम से टहनियां टूटने की आवाज आई। कई दरख्त अड़ कर धम से गिरे। शहजादा अभी सोच ही रहा था कि ये क्या हो रहा है कि एकदम से जमीन हिचकोले लेने लगी। शहजादे ने घबराकर सामने देखा। बहुत से हाथी, शेर, चीते, रीछ, भेड़िए, लकड़बग्गे और दूसरे जंगली जानवर भागे आ रहे थे। ये जानवर ऐसे खौफजदा और इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने शहजादे की तरफ ना देखा। वो सब के सब भागते चले गए और जंगल की झाड़ियों में जाकर नजरों से ओझल हो गए। अब ढोल की आवाज रुक गई थी। शहजादा आगे बढ़ा और बहुत जल्द एक छोटे से मैदान में पहुंच गया। मैदान के सिरे पर एक बहुत बड़ा घर था। ये घर पत्थर का था। घर के दरवाजे के सामने एक देव बैठा हुआ था। उस देव के सर पर 2 सींग थे। उसका रंग काला था। होंठ चक्की के पाट की तरह थे और दांत भालू की तरह। शहजादा दिल में डरा, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। सलाम देव साहब, शहजादे ने कहा। सलाम चूहे, देव ने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बादल गरजते हैं। क्यों बे चूहे, खाना खाएगा? भूख तो लगी है, शुक्रिया, शहजादे ने कहा और काले देव के सामने बैठ गया। देव ने उसे कुछ खाने को दिया, लेकिन शहजादे ने सोचा कि इस देव का दिया हुआ खाना खाना ठीक नहीं। खुदा जाने क्या हो जाए। हो सकता है कि इसमें जहर हो, और अगर जहर ना हुआ तो हो सकता है कि ये कोई ऐसी चीज हो जिसे खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिया हो। चुनांचे शहजादे ने अपना प्याला सामने रखा और कहा, भुना हुआ मुर्ग। भुना हुआ मुर्ग हाजिर था। शहजादा मजे ले लेकर खाने लगा। क्यों बे, ये क्या है? देव ने पूछा। देव साहब, ये एक प्याला है और जादू का है। ये मेरे लिए खाना हाजिर करता है। मैं कहता हूँ दूध, तो ये दूध से भर जाता है। मैं कहता हूँ पुलाव, तो इसमें पुलाव आ जाता है। गरज मैं जो चीज भी खाना चाहता हूँ वो इस प्याले में आ जाती है। वाह यार, ये तो बड़े काम की चीज है। देव ने कहा, लड़के, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम कतई चूहे नहीं हो। हमने गलती की कि तुम्हें चूहा कहा। कोई बात नहीं देव साहब, शहजादा बोला। आप बड़े हैं और मैं छोटा, चुनांचे आपके सामने तो मैं चूहा ही हूँ। अच्छा, अब यूं करो कि ये प्याला मुझे दे दो। देव ने कहा। दे तो दूं, लेकिन इसके ओज आप मुझे क्या देंगे? शहजादे ने पूछा। मैं तुम्हें अपना ढोल दे दूंगा, देव ने जवाब दिया। ढोल मैं लेकर क्या करूंगा? शहजादे ने कहा। देखो, ये ढोल अजीबो गरीब है। अगर तुम इसे दाएं तरफ से बजाओगे तो हर वो शख्स और जानवर जो इसकी आवाज सुनेगा डर कर भाग जाएगा। तो इसीलिए वो हाथी और शेर और रीछ वगैरह भागे जा रहे थे। शहजादे ने कहा। बिल्कुल, देव बोला। अब अगर तुम इसे बाईं तरफ से बजाओगे तो जमीन में से बहुत से सिपाही और घुड़सवार निकल पड़ेंगे। बड़ा जबरदस्त और ताकतवर लश्कर होगा ये, जो तुम्हारे हर दुश्मन को शिकस्त देगा। ये ढोल तो बहुत उम्दा चीज है, शहजादे ने कहा। चुनांचे शहजादे ने प्याला देव को दे दिया। देव ने शहजादे को अपना ढोल दे दिया। देव ने प्याला अपने सामने रखकर कहा, खून हाजिर करो। और प्याला खून से भरा हुआ था। देव खुशी खुशी खून पीने लगा, लेकिन वो प्याला खाली ना कर सका, क्योंकि अभी उसने खून का पहला ही घूंट पिया था कि शहजादे ने कुल्हाड़ी के फल पर हाथ रखकर कहा, सर,
कुल्हाड़ी फौरन देव के सर पर पहुंची, झुकी और देव का सर बड़े से फुटबॉल की तरह उछलकर दूर जा गिरा। देव मर गया। अब शहजादा देव के घर में पहुंचा और ये देख के कांप गया कि घर की छत से बहुत सी लाशें लटक रही थीं। वो उन मुसाफिरों की लाशें थीं जिन्हें देव पकड़कर लाया था। वो हर दूसरे तीसरे दिन एक न एक दिन मुसाफिर को पकड़ लाता, छत से लटका देता और फिर उसका खून चूस लेता। चुनांचे वो सब लाशें बिल्कुल सूखी और मुरझाई हुई थीं, क्योंकि देव ने बारी बारी से उन सब का खून चूस लिया था। शहजादा देव के घर से बाहर आया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो देव से बच गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने देव को मार भी डाला। वो जानता था कि देव को मार के उसने एक नेक काम किया है और बहुत से मुसाफिरों की जानें बचाई हैं। शहजादे ने अपना प्याला उठाया, कुल्हाड़ी उठाई और ढोल भी उठा लिया। फिर उसने हीरा हाथ में लेकर कहा, मुझे मेरे वतन पहुंचा दो। और थोड़ी देर बाद ही वो अपने शहर की फसील के बाहर खड़ा था। उस शहर पर, जैसा कि हमने पहले बताया था, शहजादे का चचा सामरी हुकूमत करता था। वो समझ चुका था कि उसके हुक्म से शहजादे को कत्ल कर दिया गया है। चुनांचे वो मुतमईन था, लेकिन उसकी रियाया मुतमईन ना थी, क्योंकि सामरी उन पर बहुत जुल्म किया करता था। इसके अलावा वो महज अपना दिल बहलाने के लिए हर उस शख्स को मार डालता था जो भूले से उसकी सल्तनत में आ जाता। चुनांचे जब उसे मालूम हुआ कि एक अजनबी शहर के दरवाजे के बाहर खड़ा है, तो उसने सिपाहियों को भेजा कि उसे पकड़ लाएं। सिपाही शहर के दरवाजे से बाहर निकले और शहजादे की तरफ बढ़े। शहजादे ने जादू का ढोल निकाला और दनादन उसे दाईं तरफ से बजाने लगा। सिपाही एकदम से सर पर पैर रखकर भागे। जब सामरी को यह मालूम हुआ तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उन सिपाहियों को कत्ल करा दिया जो भाग आए थे। फिर उसने एक फौज शहर से बाहर भेजी। शहजादे ने ढोल बजाया और पूरी फौज पीठ फेर कर भाग गई। अब तो सामरी मारे गुस्से के दीवाना हो गया। उसने पूरा लश्कर तलब किया और खुद उस लश्कर को लेकर शहर से बाहर निकला। जब वो शहजादे के सामने पहुंचा तो सामरी ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो शहजादा अल्लाह दिया है, कमबख्त ये कहां से आ गया? सामरी ने सोचा। फिर अपने सिपाहियों से कहा, पकड़कर फौरन कत्ल कर दो इसे। पूरा लश्कर आगे बढ़ा। शहजादे ने फौरन जादू का प्याला उलट दिया। उसमें से जबरदस्त दरिया निकला। दरिया मैदान में फैल गया और सामरी का लश्कर डूब गया। लेकिन सामरी बच गया, क्योंकि उसने अपना घोड़ा पीछे हटा लिया था। वो शहर में घुस गया था और अब वो फसील पर खड़ा था। अब शहजादे ने कुल्हाड़ी के फल पर हाथ रखा और कहा, सर, बादशाह का सर। कुल्हाड़ी एकदम से हवा में उड़ी। वो फसील पर खड़े हुए सामरी की तरफ चली। वो उसके सर पर पहुंची। वो झुकी और सामरी की गर्दन उड़ गई। रियाया ने सामरी को मरते हुए देखा तो खुशी के नारे लगाए, क्योंकि वो उसके जुल्म से तंग आ गए थे। लोग खुशी के नारे लगाते शहर से बाहर आए। उन्होंने शहजादे को पहचान लिया। अब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब शहजादे ने अपना ढोल बाएं तरफ से बजाया। जमीन लरजने लगी। जमीन में सुराख हो गए, बहुत से सुराख। हर सुराख में से एक सवार निकल आया। यहाँ तक कि पूरा लश्कर तैयार हो गया। ऐसा उम्दा लश्कर था वो कि किसी बादशाह के पास ना होगा। शहजादा उस लश्कर के साथ शहर में दाखिल हुआ। शहर के लोग भी उसके साथ थे और वो खुशी के नारे लगा रहे थे। शहजादा अपने बाप के तख्त पर बैठ गया। उसने अपने बाप का ताज अपने सर पर रखा और निहायत रहमदिली और इंसाफ से हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।